کشمیر میں چل کیا رہا ہے؟ آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت کشمیر میں کیا چل رہا ہے۔ کشمیر میں اس وقت سیاست چل رہی ہے اور یہ سیاست شاید ہی آپ نے کبھی دیکھی ہوگی۔ ہم یہ ضرور سنتے ہیں کہ الیکشنز کے چلتے تمام جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ اپنے پرچار کرتی ہیں، وہ بیان بازی کرتی ہیں، مگر کشمیر میں اس طریقے کے حالات بنے ہیں کہ اس وقت لوگ بھیا بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ آخر کار کس کی بات سچ ہے، کس کی بات جھوٹی ہے۔ کیا عمر عبداللہ سچ بول رہے ہیں؟ کیا نیشنل کانفرنس سچ بول رہی ہے؟ کیا انجینئر رشید اس وقت سچ بول رہے ہیں؟ کیا انجینئر رشید کو چھوڑ کے سجاد لون سچ بول رہے ہیں یا پھر سید محمد الطاف بخاری سچ بول رہے ہیں؟ اس وقت اگر دیکھیں آپ تو جناب آپ بھی اس بات پہ ضرور کنفیوز ہوں گے کہ جناب سینٹر کیا چاہتا ہے اور سینٹر نے کسے اپوائنٹ کیا ہے۔ عمر عبداللہ کہتے ہیں انجینئر رشید کو کیا ہے، انجینئر رشید کہتے ہیں عمر عبداللہ کو کیا ہے، محبوبہ مفتی کو کیا ہے، سجاد لون کو کیا ہے، الطاف بخاری کو کیا ہے۔ تو اس وقت کشمیر میں کل ملا کر اگر یہ بات آپ کو میں کہہ دوں کہ اس وقت کشمیر میں دنگل چل رہا ہے، اور دنگل صرف ایک سیٹ کے لیے، صرف اپنی سیاست کے لیے۔ یہ بات بھی تمام لیڈر کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنی سیاست یا سیٹ کے لیے نہیں کرتے، ہم جموں کشمیر کی بھلائی اور بہبودی کے لیے کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتانا چاہوں گا انجینئر رشید کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب انجینئر رشید صاحب سچے ہیں، عمر عبداللہ کی پلٹن کہتی ہے، ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب عمر عبداللہ سچا ہے، الطاف بخاری کے لوگ کہتے ہیں کہ سچائی پہ تو صرف الطاف بخاری ہی ہے، سجاد لون کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور کشمیری کے ساتھ اس طریقے سے ہیں کہ سجاد لون کی پارٹی سچی ہے۔ تو اس وقت ایک ہاتھا پائی نہیں ہو رہی، باقی آپس میں کوئی بھی ایسی چیز اب نہیں رہی جو کہیں نہ کہیں بولنے لائق ہو۔ اس وقت کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہی جو کہیں نہ کہیں آپ نے نہ سنی ہو۔ اس وقت سجدے بھی ہو رہے ہیں، اس وقت دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، اس وقت مرگزاروں پہ بھی جا رہا ہے، اس وقت قبرستانوں پر جا کر دعا مانگ رہی ہے، اس وقت زیارتوں کو پوچھا جا رہا ہے، اس وقت سچائی کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے۔ مگر کل ملا کر دیکھیں تو وہ کشمیری جو معصوم سا کشمیری ہے، جو ایک اپنے سینٹیمنٹس کو روک نہیں پاتا ہے، وہ ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے یوز کیا جاتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے صرف ڈھول اور بانگڑا آگے کروایا جاتا ہے کہ جناب ہمارا شو سچا ہو جائے، ہمارے جلسے کامیاب ہو جائے اور دیکھنے لائق کوئی ایسا کنٹینٹ بنے جو تمام عوام تک پہنچ جائے، جس کی وجہ سے لوگ ہمارا ویڈیو دیکھ سکیں۔ اس وقت آپ کو میں بتانا چاہوں گا، اور مجھے کسی چیز کا خوف یا ڈر نہیں ہے اللہ کے بغیر، میں یہ چیز صاف طور پر کہنا چاہوں گا کہ ایک کشمیری کو اس وقت الجھایا جا رہا ہے، ایک کشمیری کو اس وقت اتنا زیادہ الجھایا جا رہا ہے جو آپ کی سوچ سے پرے ہے۔ فی الحال کے طور پر سیاست پہ آتے ہیں۔ عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ جناب میرے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں سینٹر میں، اور سینٹر جہاں سے میں لڑنا چاہتا ہوں وہیں سے جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ کی طور پر کھڑی کر رہی ہے اور لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرجان برکاتی کا انہوں نے تقاضا لگایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ انجینئر رشید بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بی جے پی پراکسی پارٹیز جو ہے وہ کھڑی کرتی ہے۔ تو فی الحال کے طور پر اس وقت سیاست بہت زیادہ گرم ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ سب سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں میں اپنا نمبر دیتا ہوں 7006405346، فون میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ سجیشن دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ کام کریں، کس طریقے سے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور کیا سوچ آخر کار لوگوں کو رکھنی چاہیے۔ میں پھر سے بتانا چاہوں گا 7006405346۔ آپ اس پر اپنی صرف یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سی پارٹی کیا کرتی ہے، آپ صرف اتنا ہی بتائیے گا کہ کیا کشمیر کے لوگ آخر کار سوچیں، کیا کشمیری لوگوں کے لیے جو ہے وہ صحیح راستہ ہو سکتا ہے، اور اس وقت کس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے، ہمیں ڈیولپمنٹ کو دیکھنا چاہیے یا پھر سینٹیمنٹس کو دیکھنا چاہیے۔ تو فی الحال کے طور پر جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان تک یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت سیاست عروج پر ہے، اور سیاست کے چلتے چلتے بڑے دعوے ہو رہے ہیں، اور اس دعووں کے ساتھ میں آپ کو یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو اس وقت مینیفیسٹو میں آپ کے لیے چھاپا جا رہا ہے، فری مفت پانی بجلی مفت سب کچھ دیا جائے گا، گیس سلنڈر دیے جائیں گے، اسکیمز دی جائے گی، بچیوں کو روزگار دیا جائے گا، یہ کئی سارے دعوے ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت لہٰذا کر کے مینیفیسٹو کچھ ایسا ہوتا ہے ہر ایک پارٹی کا، اور آج آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مینیفیسٹو کاپی پیسٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے پھر سے نمبر دہرانا چاہوں گا 7006405346، اس پہ آپ کال کیجئے، فون میرے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کی رائے سننا چاہوں گا کہ اس وقت کشمیری لوگ کیا سوچ رہے ہیں،
क्या आप सजेशन दे सकते हैं और किस तरीके से सियासत चल रही है और कितना लोग इस वक्त पानी में हैं, कितना लोग इस वक्त पानी से बाहर हैं। तो फिलहाल के तौर पर मैं कुछ अल्फाज आपको कहना चाहूंगा। आज इंजीनियर रशीद की जानिब से एक बयान आया है। इंजीनियर रशीद के जानिब से ये कहा गया है कि हमें जो है जब जेल में रखा गया तो हमें मेंटल सेल में डाल दिया गया, हमें खाना नहीं दिया जा रहा था, किसी से मुझे बात नहीं करने दी जा रही थी और मुझे इस कदर अजाब किया था ताकि मैं जो है मेंटली प्रॉब्लम हो मुझे और मैं पागल हो जाऊं। ये बयान था इंजीनियर रशीद साहब का, जो हाल ही में जेल से निकले हैं और कश्मीर की मिट्टी को जब उन्होंने सजदा किया और चूमा तो तमाम लोग जो है बाकायदा तौर पर सोच रहे होंगे कि सबसे अच्छा है। खैर वो उनका अपना ओपिनियन है और वो अपनी सियासत अपने तरीके से करते हैं। हमारे साथ एक शख्स फोन कर रहे हैं, फिर से बताऊंगा, अगर कोई फोन करना चाहता है 7006405346 उनसे जानेंगे कि वो कश्मीर के बारे में सजेशन क्या देना चाहते हैं। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आज उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर ताना कसा है इंजीनियर रशीद ने, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो है ताना कसा है इंजीनियर रशीद ने और सजाद लोन को जो है टारगेट बनाया है इंजीनियर रशीद ने। तो फिलहाल के तौर पर इस वक्त बीजेपी की प्रॉक्सी टीम्स कौन सी है, बीजेपी अपने सारे जो कैंडिडेट हैं वो क्यों नहीं उतार रही, तमाम सीटें पूरी क्यों नहीं की जा रही और ऐसी पार्टी को इक़्तिदार और ऐसी पार्टी को ज्यादा लोग क्यों दिए जा रहे हैं, ज्यादा सीटों पे क्यों लड़ने दिया जा रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है। और इसी के साथ साथ तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो कल तक खुद को कहते थे आज वो पार्टियां क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। जमाते इस्लामी आज इलेक्शंस में इतने डिकेड्स के बाद क्यों शिरकत कर रही है। हुर्रियत के लीडर जो कल तक हराम कहते थे सियासत को, आज सियासत में क्यों आ रहे। हम ये हरगिज नहीं कहते कि ये गलत है, आप आइए सियासत कीजिए, मगर सवाल यहाँ उठता है कि इलेक्शन के नजदीक ही इस तरीके की रंजिशें आखिरकार किस तरीके से होती हैं। इलेक्शन के नजदीक ही आखिरकार ऐसा माहौल क्यों चलता है, इलेक्शन के नजदीक ही आखिरकार जो है इस तरीके का सामना क्यों होता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिख सकते हैं, हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि इस वक्त कश्मीरी के जहन पे दबाव है, इस वक्त कश्मीरी को सच और झूठ का सामना करना है। इस वक्त कश्मीरी को हमारे एक फोन कॉल आ रहा है, माफ कीजिएगा। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी। आपने अभी फोन किया जी, बताएं आप कहां से? तो फिलहाल कुछ लोग फोन कर रहे हैं ऐसे, मगर वो पूछ रहे हैं कहां से। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कुल मिलाकर तो इस वक्त लोगों को परेशान हाल में डाला जा रहा है, लोगों के जहन पे दबाव डाला जा रहा है, लोगों को डेवलपमेंट के झांसे दिए जा रहे हैं। डेवलपमेंट कोई भी कर सकता है, डेवलपमेंट आपकी हर एक ने करनी है। कल को जो एमएलए बनेगा ये चीज नहीं होगी कि वो सड़क, पानी, बिजली और बाकी चीजें आपको फराहम नहीं करेगा। आप उनका गिरबान पकड़ सकते हैं और नौकर आप नहीं, नौकर वो लोग हैं सियासत करने वाले जो सियासत इस वक्त कर रहे हैं। तो फिलहाल के तौर पर अगर कुल मिलाकर देखें तो इस वक्त चर्चा बड़े उरूज पर है और इसी चर्चा को लेते हुए कई सारे लोग परेशान हाल हैं। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि हम आपको गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम आपको बिजली मुफ्त में देंगे, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम आपके लिए वैकेंसीज निकालेंगे। जनाब ये लोगों का हक है, अगर लोग जमहूरियत पे भरोसा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करते हैं तो वो वोट डालते हैं और वोट डाल के वो अपना नुमाइंदा चुनते हैं। कल को ऐसा ना हो कि आप अपने काम गिनाइए जैसे आज गिनाए जा रहे हैं। आज भी हर एक गली चौराहे पे, आज भी हर एक रैली में, आज भी हर एक जगह सियासतदान अपने काम गिना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब हमने ऐसा काम किया, हमने रोड दिया, हमने बिजली दी, हमने अपने वक्त में कॉलेज बनाया। जनाब वो आपने करना था, वो आपने कर लिया, वो आपकी जिम्मेदारी बनती थी। आप नुमाइंदे हो लोगों के, आपको लोगों ने वोट दिया है तो वो आपका हक है। अलग क्या कर सकते हो आप, कश्मीर का अमन किस तरीके से ला सकते हो, कश्मीर में जो जेलों में बंद है उनका रोड मैप क्या है। जो आज कहते हैं कि जितने भी जेलों में बंद है हम उन्हें छुड़वाएंगे, रोड मैप क्या है उनके पास, किस तरीके से वो आइडियोलॉजी रखते हैं, कैसे छुड़ाएंगे। बिजली देंगे वो आपको मुफ्त में, रोड मैप क्या, अगला कर्जा चढ़ा हुआ है, अगली चीजें बेची जा रही हैं, एसिड्स बेचे जा रहे हैं, अगले काफी चीजें ऐसे हैं एसिड कश्मीर के जो अपने हैं वो बेचे जा रहे हैं। तो उनके पास कैसा रोड मैप है जो कर्जा भी खत्म करेंगे और कश्मीर वालों को बिजली भी मुफ्त में देंगे। नौकरियों की बात आप कर रहे हैं, स्कैम्स क्या कम हो रहे हैं, क्या स्कैम्स आपको कम दिख रहे हैं, स्कैम्स भी बढ़ रहे हैं, वो भी आपने हल करना है। तो अलग किस तरीके से होना चाहना है आपने, अलग किस तरीके से हो सकते हो या क्या कुछ कर सकते हो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, या आपने सोचना है। फोन कॉल आ रहा है हमें। हेलो, वालेकुम सलाम जी। हजूर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बाकी जर्नलिस्ट की तरह नहीं जो वन साइडेड है, कभी किसी पार्टी के साथ कभी किसी पार्टी के साथ। बहुत शुक्रिया भाईजान।
आपने बहुत जेन्युइन इशू उठाए हैं। आप लोगों को ऐसे ही अवेयर कीजिए कि हम कहीं फिर से कोई गलत कदम ना उठाएं बेशक। जिससे हमारा नुकसान हो। बिल्कुल। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं भाईजान? जी जी, आप कहाँ से हैं भाईजान? मैं उड़ी बिजहामा से हूँ। जी, क्या लगता है आपको इस बार सियासत किसकी ओर जा रही है और क्या लोगों को छलावे दिए जा रहे हैं? देखिए, ये जो है इस वक्त छलावे ही दिए जा रहे हैं जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपोजिट इस वक्त एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी हो रही है। जी जी, इस कॉन्स्पायरेसी को रोकने के लिए आप जेन्युइन उठाइए। जी मतलब जहाँ से उमरुल्लाह कंटेस्ट करते हैं वहाँ से बरकती साहब भी कर रहे हैं, उनको अपने एरिया में क्यों नहीं करने दी जा रही है? मतलब ऐसे इश्यूज देखिए ना आप। ये तो आपको क्या लगता है खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट अगर आप मानते हैं बना रहे हैं तो क्यों बना रहे होंगे? लोग क्या सोच रखते होंगे? ये इसलिए बना रहे हैं कि कहीं इनकी हुकूमत आ जाए, ये बाकी कोई जो जेन्युइन डिमांड्स है लोगों की वो पूरी ना करें, आर्टिकल के बारे में ये वापस लाने की कोशिश ना करें। यहाँ जो रोजगार खत्म हो गया, जो नेशनल काउंसिल ने रोजगार यहाँ पैदा किया था जी वो तो टोटली खत्म हो चुका है ना अब। जी आप देखिए, हम 2014 से हमारी क्या हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पहुंची है, पीक पे है अनएम्प्लॉयमेंट। जी ये सारी चीजें आप डिस्कस कीजिए अच्छे से। जी बाकी जर्नलिस्ट की तरह आप न कीजिए कि ये जैसे शाहिद इमरान साहब कभी एक पार्टी के साथ चले जाते हैं तो उनका दिखा रहे हैं। आपने आज बहुत अच्छा इशू उठाया, जेन्युइन इशू उठाया। खैर, आई पर्सनली कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। कोई सजेशन देना चाहेंगे जिससे लोग अवेयर हो सकें और लोग अपना वोट डालने से पहले 10 बार ही सोचें कि किसको देना है, किसके हक में देना है? कोई ऐसा सजेशन? क्यों नहीं जी। देखिए, हमने मैं नॉर्थ से हूँ, आई बिलोंग टू द नॉर्थ। पीपल यहाँ मोस्टली जो हमारी यंग जनरेशन है वो इमोशनल सेंटिमेंट्स के साथ चले जी। गए और उसका आपने देखा साउथ की कैसी रिप्रेजेंटेशन है जी सेंटर की कैसी रिप्रेजेंटेशन है और अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ की रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। जी मतलब हम इमोशंस में आ गए ना। आपके वहां से ताज मोहिद्दीन साहब थे, सजाद उड़ी जिसको कहा जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो क्या लगता है सड़क तो बनी ही बनी, और क्या उड़ी के लिए डेवलपमेंट करनी चाहिए? देखिए, मेन मसला है हमारे यहाँ जो हमने अपने लीडर के साथ डिस्कस भी किया हुआ, हमारा यहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा सेक्टर है जी जिसको एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक इसकी तरफ कुछ नहीं किया। जी तो हमने अपने जो हमारा इंशाल्लाह एमएलए बनेगा डॉक्टर सजाद शफी उड़ी, वी सपोर्ट हिम। तो इंशाल्लाह हम उनके साथ पहले ये एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगी जब हमारे एरिया के ये जो स्पॉट सारे जो हैं इन पे टूरिज्म हो जाएगा, यहाँ रोड कनेक्टिविटी हो जाती है, बाकी चीजें हो जाएंगी। ये बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, आप कभी आ जाए, हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। आए हैं हम, बिल्कुल हम वहाँ बहुत जगहें घूम के आए हैं और बहुत जगहें जो है कवर करके आए हैं। तो खैर भजन, बहुत शुक्रिया अपना सजेशन देने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिलहाल के तौर पे ये कुछ लोगों की राय लेना चाह रहा हूं मैं। अगर आप भी फोन कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकते। 7006405346 इस वक्त मैं लाइव हूं और लाइव में जो है आपकी बातें रखूंगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस वक्त सियासत के दावे उरूज पर चल रहे हैं और इस वक्त सियासत आसमान पे जा रही है, 7वें आसमान पे। और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जमाते इस्लामिया इलेक्शंस में आएगी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट का कदम है। किसी ने एक्सपेक्ट ये भी नहीं किया था कि हुर्रियत के लीडर्स आएंगे, किसी ने एक्सपेक्ट ये भी नहीं किया था कि जेलों से इलेक्शन लड़ा जाएगा। मगर माहौल बदल रहा है, डेमोक्रेसी पे लोगों को भरोसा वापस आ रहा है और लोग एक बार फिर से अपनी आंखें खोल रहे हैं और अब आंखें खोलकर अपना नुमाइंदा इस बार चुनने वाले हैं। तो फिलहाल के तौर पर इस वक्त कश्मीर में कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो लोग कंफ्यूज हैं, लोग इस वक्त परेशान हाल हैं और लोग चाहते हैं कि जनाब अब किसकी ओर जाए, आखिरकार किस राह पे चला जाए, किस तरीके से चला जाए, वो भी लोग इस वक्त बाकायदा तौर पर सोचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आप अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हमें एक फोन आ रहा है। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी जी, लाइव हूं मैं। जी जी जी, बिल्कुल। आपका ये जो अभी इनिशिएटिव है इसके लिए आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अभी आप न्यूट्रल हो पार्टी के बीच में, बहुत सभी पार्टीज के बीच में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बताएं, हुक्म करें ना, आपको लाइव देख रहे हैं लोग, बताएं आप हुक्म करें। जी थैंक यू सो मच इसके लिए। और तो अभी जो भाई एक हमारे यहाँ से थे नॉर्थ से भी, मैं भी नॉर्थ से बिलोंग कर रहा हूँ, मगर मैं सेंट्रल नॉर्थ पटन से बिलोंग कर रहा हूँ। हाँ, तो ये क्या है एक्चुअली, ये पूरे हिंदुस्तान का ही हाल है जी। आप ये मत समझिए यही कश्मीर का दुरुस्त हाल है, दुरुस्त। देखो, एक नैरो माइंडेड और वास्ट माइंडेड होनी चाहिए जी
पूरे हिंदुस्तान का ये हाल है। आप जानते हो, आपने पढ़ा भी है पीछे पीछे कि यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है जी। तो मल्टी पार्टी सिस्टम देखे आप, ये जो हमारे यहाँ पर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जी जैसे USA है, आप देखिए वहाँ पर बाई पार्टी सिस्टम जी और चाइना में भी, आप जापान में भी देख सकते हो सिंगल पार्टी सिस्टम। जी तो रही बात जो हिंदुस्तान की, और आपको पता ही है JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो हुआ, जी। उसके बेस जो यहाँ पर हुआ, तो जैसे ही मतलब ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ये तो कश्मीर में भी हो गया। हाँ? जी। एक तो ये बात है जी। जी, इस रिगार्डिंग सर। तो आप तो क्या दूसरी- जी बताएं जी जी प्लीज बताएं तो बताएं आप। देखो अभी एक हमारे भाई ने, मैं उसी का जवाब देने के लिए सर आपको फोन किया, जी तो वरना मैं देख रहा था मजे से आपका लाइव, जी 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 तो इसलिए फोन किया था सर। तो ये जो भाई बता रहा था, जी यंगर्स को ही आगे आना है, ये बता रहे हैं यंगर्स इमोशंस का ये हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। मतलब शिकार हो रहे हैं। जी, बिल्कुल दुरुस्त है। एज पर माई ओपिनियन यंगस्टर्स को ही इस काम के लिए आगे आना है। आई थिंक इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक इशारा फरमाया था कि वो सबक पर फिर शजाअत का, सदाकत का लिया जाएगा तुझसे इंतहाम दुनिया की इमामत का। जी। ये सब आप पे भी एक जिम्मेदारी बनती है, हर किसी ने जी। पे ये जिम्मेदारी बनती है कि हाँ हमें एक काम लिया जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त है जी। एज पर बूढ़े देखो आप, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं भी न्यूट्रल रह रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी पार्टी का नाम बताइए, आप कश्मीर के लोगों के हिसाब से जो लोग सोचते हैं वही बताइए। हमें किसी पार्टी में मैं अगर बताऊंगा आपको कि मैं इंजीनियर साहब के साथ, तो वो भी मतलब ये अभी नाइंसाफी हुई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो मैं एज पर मतलब आपने जो क्वेश्चन था, मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ एज पर पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त कहा। हाँ। अच्छा, अच्छा, आपसे ये बात जानेंगे, क्या लगता है इस बार कश्मीर के लोगों को क्या सोचकर अपना नुमाइंदा चुनना चाहिए? जी एग्जैक्टली सर। जो देखो सर, इससे पहले हमें मतलब ये अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 370 या 35A ये जी। हमारे लिए एक टूल, ये पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक टूल बना था जी हाथ में। जी वो यही फेर के घूम रहे थे, ये मतलब ये एक टूल था उनके पास, बस यही पता हम बचा रहे, बट एक्चुअली में वो कश्मीर को डुबो रहे हैं। तो बिल्कुल जिसने लिए हमें अब ये नरेगा नहीं चाहिए, कश्मीर को मतलब ओन सोर्सेस ऑफ इनकम है, टूरिज्म है यहाँ पर, मतलब फ्रूट्स भी है, बहुत सारे हैं, हमें मतलब वहाँ का नहीं चाहिए। हमें मतलब मैं पॉइंट से थोड़ा इधर उधर घूम जाता हूँ, इसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, हाँ। आप टू द पॉइंट बताइए, क्योंकि बाकी भी फोन कर रहे हैं। बिल्कुल क्या देखना चाहिए, आप अपने सियासतदान में क्या देखते हैं, क्या क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरीके से उसमें चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल सर, यही बस एक शॉट है। अभी तक ये चीज जब से यूटी बनी है, मैं भी थोड़ा सा जानना मतलब इसमें जान गया हूँ कि ये जो यूटी बनी है, अब इस सीएम का कोई मतलब रोल ही नहीं रहेगा, जितना लेफ्टिनेंट गवर्नर का अभी इसमें रहेगा वो फिर भी रहेगा जब सीएम भी चूज हो जाएगा। हाँ, पीएम की कुछ गुंजाइश है, तो हम गवर्नमेंट से यही इस प्लेटफॉर्म से यही मतलब मुतालबा कर रहे हैं, जैसे इंटरम बेल प्रोवाइड की गई हमारे इंजीनियर साहब को, हम नॉर्थ के इंजीनियर साहब को इंटरम बेल प्रोवाइड की गई। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनकी बात और उनके एहसास, अगर कश्मीर के एहसास है। आप देखिए आज श्रीनगर से रैली, ये देखिए सर, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, जो ओल्ड पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल, आप मेरे सवाल का जवाब सही नहीं दे रहे ना, आप मेरे सवाल का बेजान। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप अगर कोई नुमाइंदा चुनते हैं तो क्या देखकर आप चुनते हैं, क्या देखना चाहिए इस वक्त कश्मीरियों को कि ताकि वो अपना नुमाइंदा चुन सकें, कौन कौन सी चीजें आगे रखकर चुनते हैं? सवाल तो सर, अगर आप इसमें डीपनेस से जाए तो ये बहुत बड़ा एक सवाल आप मतलब क्रिएट कर रहे हो। बिल्कुल। तो फिर भी अवेयरनेस है लोगों को, हमें यही देखना चाहिए सर कि बच्चे कैसे पढ़े, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए, एजुकेशन सिस्टम ज्यादा से ज्यादा ठीक होना चाहिए सर। मैं यही बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे दूसरा फोन आ रहा है, माफी चाहता हूँ, माजरत खा हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। मैं भी सर आपका बहुत टाइम लिया इसके लिए। थैंक यू। तो फिलहाल आपको बता दूं कि आपका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें। जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी सजेशन रखिए। जो इस वक्त का इलेक्शन है, बेसिकली ये कोई सिलेक्शन नहीं है, बल्कि हम ये जो इलेक्शन है, मैं
बस इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो ये इलेक्शन है, ये हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके फ्यूचर। लिए, फ्यूचर के लिए काम करेगा। बिल्कुल दुरुस्त आप कहते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसीलिए मेरी सबसे जी। ओवरऑल कश्मीर की आवाम से गुजारिश है कि आज का जो हमारा इलेक्शन है या जो वोट है जी। वो हम खास तौर पे उस कैंडिडेट को दें जिसकी आवाज कल को हर जगह पे सुने, भारत में सुने, भारत के हर किसी आप टू द पॉइंट बोले, बहुत अच्छा बोले, बहुत। आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम अरबाज है। अरबाज, कहाँ से आप? जी श्रीनगर से। अच्छा, कैसे सोचते हैं आपका नुमाइंदा जो हो किस तरीके का होना चाहिए? बस आजकल का जो नुमाइंदा होना चाहिए वो सबसे पहले डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करना चाहिए। सही है। कि हमने जज्बात की सियासत बहुत देखी है, लेकिन आज का मुद्दा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उस पर बात होनी चाहिए। तो क्या लगता है, लोगों को सेंटिमेंट्स पे जाना चाहिए या फिर लोगों को डेवलपमेंट पे जाना चाहिए? सेंटिमेंट से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट से जो भी है वो डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं हो पाता है। जी। हमने हमेशा सेंटिमेंट वोट को ही सियासत को ही जितवाया है और जो आज हम दे। खैर, बहुत शुक्रिया भाईजान वक्त देने के लिए। माजरत खाऊं, बाकी भी फोन कॉल्स आ रहे हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी जी, बताएं, हुक्म करें जी। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं ये बताना चाहता हूँ सर जी। कुछ नहीं आपसे ये सर सरकार की टिकट दे दी है जो लंगियात में इलेक्शन लड़ना चाहती है सर। जी। सर वो अपने एरिया में भी लड़ सकती है, तो फिर वो बिना वजह है क्यों दे रहा है इसको? मतलब अपने एरिया में उन्हें फॉर्म नहीं भरने दिया, तब उन्हें उनका वक्त चला गया था और एक सिग्नेचर पेंडिंग रह गया था। फिर भी यहाँ पे 2-3 पार्टियां है इंजीनियर को ये टारगेट क्यों हो रहा है? तो आपको क्या लगता है टारगेट कौन है? इंजीनियर को टारगेट क्यों है सर ज्यादा मेरे ख्याल से? अच्छा, क्या लगता है आपका कहाँ तक पढ़े हैं आप कहाँ तक पढ़े हैं? सर मैं पीजी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? पीजी सर, पीजी। अच्छा, सो एज ए यूथ किसको चुनेंगे आप? अगर आप इस बार रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो उसमें क्या देखेंगे आप? सर मेरे ख्याल से मेन एस्पेक्ट सर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है सर। जी, अनएम्प्लॉयमेंट को ज्यादा आप तरजीह देंगे? हाँ सर, इसी को जब हम उस लीडर को चुनेंगे सर जो ज्यादा उसमें वही फोकस करेंगे, क्योंकि सर अनएम्प्लॉयमेंट वो सबका इस कश्मीर में सर जो मतलब इससे मतलब मैं भी सर कुछ ठीक नहीं होता है सर, मतलब बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं, तो हम उसी लीडर को चुनेंगे सर जो हमारे लिए बात करेगा सर। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको कुल मिलाकर बात करूं तो लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट को चुनना चाहते हैं और लोग इस वक्त जो है वो इस बात पे हरगिज नहीं जा रहे कि सेंटिमेंट्स को लेकर हम आगे जाएं इलेक्शंस में। तो फिलहाल के तौर पर इलेक्शंस उरूज पर हैं, तैयारियां बड़े पैमाने पे चल रही हैं और दस्तरखान बिछा दिया गया है। अभी देरी है कि खाना परोसने की और एट दी एंड जो है जायके का खबर ये आनी चाहिए कि जायके का टेस्ट कैसा था, वो अक्टूबर में पता चलेगा। आप फिलहाल इसी टाइम में कल आपके सामने आऊंगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।